Hello students, hope you have seen the first part or the explanation of the lesson The Hare on the Moon, that is lesson 8 of class 6 English reader. So this is the second part, and in this part we will discuss exercise. Okay, in the previous video I have already discussed the question answers of this chapter. So let's start with the B part, that is true false. Write true or false in the brackets. The hermit was not hungry, so it's false. The hermit was hungry. Yes. Second, the monkey offered him nuts. Yes, it's true. The monkey offered him nuts. The hare was a kind animal. Yes, it's true. The hare was a kind animal. The otter offered nothing to the hermit. It's false. Okay, so you have to write within the bracket. I am writing here T and F. Okay, so the otter offered nothing to the hermit. It's false because the otter offered fish to the hermit. The hermit enjoyed eating fish. It's false. Okay, hermit was vegetarian. Okay, how can he eat fish? The hermit ate the grass. False. False. Okay. He was a human being and he can't eat grass. The hermit was an angel. It's true. Yes, the hermit was an angel. It's true. Okay. So, first is false, second true, third true, fourth false, fifth false, sixth false, and seventh true. Done? So, next exercise. Vocabulary. Separate the animals given in the box according to the food they eat. Okay? So, here in the box, you have here in the box given the name of animals. So, according to the below box, you have to divide them in category. Okay? So, categories are eats only plants, that is herbivorous, carnivorous and omnivorous. So do you know herbivorous means? Herbivorous eats only plants, eats only flesh, that is carnivorous. Eats both flesh and plants, that is called omnivorous. Yes. So can you categorize? Yes, it's very easy for you. Eats only plants. So, horse. Yes, eats only plants. So, here will come horse. Yes. Next is cat and dog. So, cat and dog will come in third category. Okay. Cat and dog here. Cat and dog. They are omnivorous. Tiger, carnivorous. Okay. Here, tiger. Elephant. Yes. Can you tell me elephant? Hare, deer, lion, wolf, cow, goat and camel. So it's very easy for you. You can categorize easily. Okay. For example, hare. Yes. What does hare eat? Grass. Yes. Deer. Yes. Lion, wolf, cow. Definitely cow only. Cow eats only plants. Goat also. Okay, so in this way you can categorize easily. Grammar. Look at the pictures and statements carefully. I am hungry. I have some nuts. I have a few fish. I have a lot of grass. So, what are the similarities in these sentences? Everywhere you can see inverted comma. Okay, so this is called inverted commas. Okay, so because it is in which speech? It is in डायरेक्ट स्पीच कि जब भी कोई बात एज इट इज़ है ना, जैसा कि मैं कुछ बोल रही हूँ और मेरे ही वर्ड्स में अगर कोई स्टेटमेंट लिखा जाएगा या कहा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, कि जैसे मैंने कहा कि आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ, तो आप जब ये बात किसी और को बताने जाएंगे तो आप ये थोड़ा ना कहेंगे आई एम हंग्री. ऐसे में तो आप भूखे हो जाएंगे. आप क्या कहेंगे कि
मैम इज हंग्री, मैम भूखी है ना। बट आपको मेरे ही वर्ड्स में अगर वो बात कहनी है तो आप कैसे कहेंगे, मैम ने मुझसे कहा आई एम हंग्री, ठीक है। तब आप उस बात को कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में। मतलब मेरी बात को जब आप एज इट इज रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे ही वर्ड्स में, तो ये कैसे आ जाएगी, इन्वर्टेड कॉमा में। ओके, सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ओके, हम इसे ग्रामर पार्ट में स्टडी करेंगे, बट है ना, फॉर दिस एक्सरसाइज वी विल सॉल्व इट। द सेंटेंसेस गिवन इन द balloons can be repeated as below। ओके, अब जो बलून्स में यहाँ बलून्स बने हुए ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो ये जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखे हुए हैं, अब आपको इन सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर कोई जाएगा और बताएगा कि मैम आई एम हंग्री, तो वो वहाँ जाके क्या बोलेगा, मैम इज हंग्री। तो उसने चेंज किया, तो अब उसने डायरेक्ट तो मेरे ही वर्ड्स में ना बोल के इनडायरेक्टली उस बात को रखा, तो दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कि ये कैसे इस सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, है ना, उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। यस, तो फर्स्ट इज द हर्मिट सेड आई एम हंग्री। हर्मिट ने क्या कहा, आई एम हंग्री। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ कॉमा लगा है, और यहाँ जो आपका सेंटेंस था, स्टेटमेंट था, उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा है। अब इसका आंसर हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, द हर्मिट सेड दैट ही वॉज हंग्री, क्योंकि भूखा कौन था, हर्मिट था। तो हर्मिट कैसे, आपका हर्मिट की जगह क्या आ जाएगा, ही वॉज हंग्री। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, रूल्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं या नरेशन कैसे हम बनाते हैं, बट इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बता दूंगी एक्सरसाइज के। बट आप मेरा जब ग्रामर पार्ट देखेंगे, है ना, इस टॉपिक के ग्रामर वीडियोस को देखेंगे, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसे चेंज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि इसमें जितने भी सेंटेंसेस है वो आपके किस में है, पास्ट टेंस में है। ओके, तो दोनों ही जगह, हर जगह आपका पास्ट टेंस यूज होगा। बस आप इतना माइंड रखिए, इतना रिमेंबर रखिए अपने माइंड में कि हर जगह आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस चूज हुए हैं ये आपकी स्टोरी से लिए गए हैं जो कि पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही रूल याद रखना है, बाकी अगर प्रेजेंट में, फ्यूचर में कैसे होता है ये आप मेरे ग्रामर वीडियोस में देखेंगे। ओके, द सेकेंड इज द ऑटर सेड आई हैव अ फ्यू फिश। So the answer is the otter said that he had a few fish. Third, the monkey said, I have some nuts. The monkey said that he had some nuts. Fourth, the hare said, I have some grass. Answer, the hare said that he had some grass. तो आपको अगर मंकी है, ऑटर है, हर्मिट है ना, तो ये सारे क्या हैं आपके, मैस्कुलाइन जेंडर है। तो हर जगह क्या यूज हुआ है, ही। ठीक है, और पास्ट टेंस है हर जगह, से का सेकंड फॉर्म है सेड, ऐसे आईडी सेड, तो हैव का भी सेकंड फॉर्म लग गया है हैड। गॉट, तो इतना आपको पता रहेगा। जहाँ एम है वहाँ पर वॉज हो गया है, हैव का पास्ट फॉर्म हैड हो गया है। ओके, सो इट्स इजी फॉर यू। यस, so as you see, we make the following changes when we repeat somebody's speech to someone else। ठीक है, तो हम जब किसी और के स्पीच को किसी और की वर्डिंग्स में बोलते हैं तब हम कुछ चेंजेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया जैसा आपने देखा, और दैट इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब सेड। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है सेड आपकी, क्योंकि रिपोर्ट करने वाला उस वर्ब को यूज कर रहा है। रिपोर्ट करने वाला मतलब बताने वाला, तो उसने वर्ब, उसकी वर्ब क्या थी, सेड, क्योंकि उसने कहा। तो उसके बाद आपको क्या यूज करना है, सेड दैट। देखिए आप, द ऑटर सेड दैट, द हर्मिट सेड दैट, तो हर जगह दैट यूज हुआ है। ठीक है, थर्ड इज एम चेंजेस टू वॉज एंड हैव टू हैड, हर जगह पास्ट हो गए। ओके, एम का वॉज एंड हैव का हैड, बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन
द पास्ट टेंस, ओके, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कैसी थी, पास्ट टेंस में, इसलिए हर जगह ये कैसे हो गया, ये भी पास्ट टेंस में। वर्ब्स यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस विल बी रिपोर्टेड इन पास्ट टेंस, ओके। जो वर्ब्स होती हैं जो यूज्ड थी प्रेजेंट टेंस में, वो रिपोर्ट की जाएंगी किस में, पास्ट टेंस में, ओके। तो यही हुआ है यहाँ पर। तो आपको सिर्फ इतने सिंपल ये 4 रूल्स ही याद रखने हैं यहाँ पर चेंजेस करने के लिए, ओके। सो नाउ वी नाउ फॉलो शालिनी एट स्कूल एंड होम। She hears Geeta and Mohan talking at school. She then reports their conversation to her mother. One example is done for you. Do the rest of the exercise. Okay? यहाँ पर जो हम शालिनी हैं, हम उसे स्कूल और घर पे फॉलो करते हैं, ठीक है। She hears Geeta and Mohan talking at school. वो सुनती है गीता और मोहन की स्कूल में बातें, और वो वही बातों को अपनी मम्मा को, है ना, उनकी बातों को, उनके कन्वर्सेशन को अपनी मम्मा को बताती है या रिपोर्ट करती है। तो वो उनकी बातों को जब अपनी वर्डिंग्स में बताएगी तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब वो यहाँ पर ये थोड़ी ना बोलेगी आई, क्योंकि उसने वो काम नहीं किया होगा। वो किसके बारे में बता रही होगी, या तो गीता के बारे में या फिर मोहन के बारे में। वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू, डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज। एक एग्जाम्पल आपके लिए किया गया है और आपको बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, रेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, ओके। आई वॉन्ट अ पेन, ओके। ही सेड दैट, ये है आपका, है ना, आई वॉन्ट अ पेन, ये मोहन ने कहा। अब वो बता रही है मोहन की बात, है ना, ये आपकी कौन है, शालिनी है, ठीक है। ये अपनी मम्मा को जो स्कूल में मोहन ने जो बात कही उस बात को रिपोर्ट कर रही है, कन्वर्सेशन उनका बता रही है। अब वो कैसे बताएगी, मोहन ने कहा, मोहन सेड आई वॉन्ट अ पेन, ये मोहन ने कहा, मोहन सेड आई वॉन्ट अ पेन। अब शालिनी उसे अपनी मम्मा को, ये शालिनी अपनी मम्मा को कैसे बता रही है, he said that he wanted a pen। तो अब देखिए मोहन क्या है, बॉय है, तो बॉय की जगह क्या यूज हो गया, he। अब he said के बाद हमने क्या यूज किया है, that, हमें that यूज करना था, रिमेम्बर। अब मोहन की जगह पेन किसे चाहिए, मोहन को चाहिए, आई को तो नहीं चाहिए, शालिनी को नहीं चाहिए, पेन किसे चाहिए, मोहन को। तो he wanted, want का सेकेंड फॉर्म wanted। He said that he wanted a pen. Clear? Now next, I have a new pen. अब देखिए, ठीक है, शालिनी ने कहा I have a new pen, या गीता ने कहा, ओके। तो I have a new pen, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, she said that she had a new pen, ठीक है। She said that she had a new pen. Okay. Now, next. I have an umbrella. Okay, the third one is, so he said that he had an umbrella. Fourth is, I have a new frock. So answer is, she said that she had a new frock. Next is, I am a student. Then the answer is, he said that he is a student। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये कैसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्या चेंजेस आएगा। he said that he is a student, तो मैंने am को was नहीं किया, मैंने am को क्या लिख दिया, is लिखा। अब मैंने ये क्यों लिखा, ठीक है। देखिए मोहन ने कहा आई एम ए स्टूडेंट, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो जब वो अपनी मम्मा को बताने जाएगी तब मोहन तब भी स्टूडेंट ही रहेगा। ये कैसी बात है, ये एक ट्रुथ है। तो ट्रुथ के लिए हम टेंस को पास्ट में या फ्यूचर में हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि जो मोहन है वो तो अभी भी स्टूडेंट है ना। वो ऐसे तो नहीं बताएगी कि मोहन सेड, है ना, कि मोहन ने कहा कि वो एक स्टूडेंट था। तो ये तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मोहन तो अभी भी स्टूडेंट है। इसलिए द आंसर विल बी ही सेड, है ना, ही सेड दैट ही इज अ स्टूडेंट, कि उसने कहा
वह एक स्टूडेंट है। यहाँ पर एम का वॉज ना होकर एम का इज ही होगा। ओके, रिमेंबर। नाउ आई हैव अ पर्स। ठीक है, सो द आंसर इज शी सेड दैट शी हैड अ पर्स। ओके, so it's clear to all of you? Yes, done. Next is writing. A. Look at the message left by the mother for her child before leaving the house. अब इस मैसेज को आपको देखना है जो एक मम्मा ने अपने बच्चे के लिए लिखा है घर से निकलने के पहले। ठीक है, सो मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ है एंड व्हाट इज द मैसेज? गोइंग आउट फॉर हाफ एन आवर। ओके, योर ब्रेकफास्ट इज ऑन द टेबल एंड फ्रॉम, किसका नाम लिखा है, कौन है? माँ। ओके, एम ए, माँ। सो वो कह रही है कि मैं हाफ एन आवर के लिए जा रही हूँ और तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा है। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, अब आपको एक्चुअल में क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल राइट ए मैसेज फॉर योर मदर गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको सेम ऐसे ही अपनी मदर के लिए मैसेज लिखना है जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो नीचे दी गई है। यू आर गोइंग आउट टू प्ले एंड विल रिटर्न आफ्टर एन आवर। ओके, अब बाहर खेलने जा रहे हैं और 1 घंटे के बाद वापस आएंगे। यू हैव लेफ्ट द की ऑन द टेबल, और आपने की को कहाँ रखी है? टेबल पे रखी है। सो अब आपको इसका मैसेज लिखना है, तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले बॉक्स बनाना है और मैसेज क्या बनेगा? गोइंग आउट टू प्ले। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा? गोइंग आउट से, जैसे ये स्टार्ट हुआ है गोइंग आउट टू प्ले फॉर एन आवर। ओके, फुल स्टॉप एंड नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द की इज ऑन द टेबल और आपका नाम। ठीक है, आप अपना नाम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपको सन ना डालने की बजाय जिस नाम से आपको आपकी मम्मा पुकारती है, फॉर एग्जाम्पल राजू, तो इस माँ की जगह आप क्या लिख देंगे? राजू इन द बॉक्स, है ना नीचे। तो द मैसेज विल बी, मैसेज क्या होगा? यस, गोइंग आउट टू प्ले फॉर एन आवर, द की इज ऑन द टेबल, राजू। ओके, लास्ट में। सो कैन यू डू दिस इजिली? आई थिंक सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है बस, है ना, सेम। गोइंग आउट टू प्ले फॉर एन आवर एंड द की इज ऑन द टेबल, नीचे के सेंटेंस में द की इज ऑन द टेबल। ओके, एंड हियर यू हैव टू राइट योर नेम। यस, पुट द पंक्चुएशन मार्क्स। अब आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ओके, कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, तो ऑल दिस आर पंक्चुएशन मार्क्स। तो आपको इसको यूज़ करना है। पंक्चुएशन मार्क्स का भी वीडियो मैंने ग्रामर के लिए बनाया है, तो आपको वो वॉच करना है और वो आपके लिए ईजिली अवेलेबल होगा यूट्यूब चैनल पे ही, इसी चैनल पे, और आप उसे वॉच करके पंक्चुएशन मार्क्स को इजीली समझ सकते हैं। ओके, राइट योर नेम, द टीचर सेड। अब देखिए, राइट योर नेम, तो ये टीचर का क्या है? स्टेटमेंट है ना। तो सबसे पहले तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से, तो डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे आपका ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, राइट योर नेम, और राइट योर नेम के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, देन कॉमा, द टीचर सेड। ठीक है, अब यहाँ फुल स्टॉप। ठीक है, द टीचर सेड के बाद फुल स्टॉप। अब आई तो आपका कहीं भी हो हमेशा कैपिटल ही होता है ना, सिंगल आई। आई लिफ्टेड द पिंक चॉक टू द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूड देयर। ठीक है, तो मैंने क्या किया? आई लिफ्टेड द पिंक चॉक टू द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूड देयर, देयर के बाद फुल स्टॉप। डोंट यू नो योर नेम। ठीक है, अब अगेन डोंट का डी कैपिटल हो जाएगा, डोंट यू नो योर नेम। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हें अपना नाम नहीं पता है? ठीक है, तो हमने क्या क्या यूज़ किया? सबसे पहले डब्ल्यू कैपिटल और राइट योर नेम, राइट योर नेम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमा, द टीचर सेड।
यस, देन फुल स्टॉप, आई कैपिटल हो जाएगा, आई लिफ्टेड द पिंक चॉक टू द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूड देयर, देयर के बाद फुल स्टॉप, डोंट का डी कैपिटल एंड यहाँ पर डोंट, हाउ टू राइट डोंट, DON, और यहाँ आपका अपस्ट्रॉफी, ठीक है, देन टी, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखते हैं डोंट, डोंट यू नो योर नेम, फिर क्वेश्चन मार्क नेम के बाद, देन आफ्टर आई, अगेन आई इज हियर, सो आई कैपिटल, नेम के बाद क्वेश्चन मार्क, देन आई कैपिटल, आई डिड नॉट आंसर, ओके, सो उसने क्या किया, आंसर नहीं दिया, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, अगेन रवि, आई सेड, ठीक है, फिर से क्या हुआ, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, अब आंसर क्या हो जाएगा, रवि का आर कैपिटल, वाई, बिकॉज रवि इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में आपका जो फर्स्ट लेटर होता है, नेम होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है, तो रवि आई सेड, ओके, सो हियर फुल स्टॉप, डन। सो आपको कहीं भी अगर और कुछ कोई पंक्चुएशन मार्क्स मिसिंग होगा तो वो आपको फाइंड आउट करना है और प्रॉपरली इसको पंक्चुएट करना है इस पैराग्राफ को, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी, लिसन टू योर टीचर एंड मेक अ स्पीकिंग स्ट्रिंग, थिंग्स नीडेड, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, 5 to 10 meters, 2 plastic cups, सी अपेंडिक्स लेसन 8, ठीक है, तो ये हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स योर मदर गेव यू टू चेक, एक आपकी मदर ने लिस्ट दी है थिंग्स की, है ना, यू हैव टू चेक, टेल योर मदर हाउ मच और हाउ मैनी थिंग्स आर लेफ्ट एट होम, ठीक है, examples are given, how much or how many, look, how much or how many, तो how much, the meaning of how much is also कितना या कितने, and the meaning of how many is also कितना या कितना, ठीक है, क्वांटिटी के लिए कितनी क्वांटिटी है, but where to use how much and where to use how many, हमें हाउ मच कहाँ यूज़ करना है एंड हाउ मैनी कहाँ यूज़ करना है, सो लुक आई टेल यू, हाउ मच जब आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, आपको मैंने नाउन्स करवाया है अनकाउंटेबल, जब आप चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं देन आपको यूज़ करना है हाउ मच, और जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के लिए आपको यूज़ करना है हाउ मैनी, याद रहेगा, हाउ मच फॉर अनकाउंटेबल you and how many for countable, yes, so little rice, there is a little rice left, so little, a little and a few, so what is the difference, a little, a few, तो सेम थिंग, a little यूज होता है अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, एंड अ फ्यू यूज होता है आपका काउंटेबल, ओके, अ लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल एंड अ फ्यू यूज होता है काउंटेबल, ये है आपका अनकाउंटेबल एंड अ फ्यू होता है काउंटेबल, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लिटिल, देयर इज अ लिटिल राइस लेफ्ट, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राइस है, जो राइस के पहले क्या यूज हुआ है, अ लिटिल, तो राइस, कैन यू काउंट राइस, क्या आप राइस को काउंट कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, आप राइस को कैसे आप केजीज में परचेस करते हैं ना कि नंबर्स में, ठीक है ना, तो आप क्या होगा आपका आंसर यहाँ पर, देयर इज अ लिटिल राइस लेफ्ट, नाउ सेकेंड इज पेन्स, सो कैन यू काउंट पेन्स, यस, पेन इज काउंटेबल, सो आपको पेन के लिए क्या यूज करना है, अ फ्यू काउंटेबल के लिए एंड लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, रिमेंबर,
याद रहेगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल के लिए क्या था, हाउ मच, और काउंटेबल के लिए हाउ मैनी, सी। यस, तो काउंटेबल मीन्स जिसे काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन्स, सो देयर आर अ फ्यू पेन्स लेफ्ट। सेकेंड, थर्ड इज ऑयल, ऑयल के लिए देयर इज अ लिटिल ऑयल लेफ्ट, ठीक है। ऑयल के लिए हम क्या यूज करेंगे, अ लिटिल। नेक्स्ट इज बटर, देयर इज अ लिटिल बटर, okay, the answer is there is a little butter left. Next is there are a few biscuits left, there are a few biscuits left because you can count biscuits, biscuits को आप count कर सकते हैं। Next is there is a little salt left, salt you can't count salt, so there is a little salt left. Next, there are a few candles left, so you can count candles, आप candles को count कर सकते हैं, that's why there are a few candles left. Next is there are a few pencils left. Next, there are a few flowers left. Next, there are a few apples left. Next, there are a few matchboxes left. Next, there is a little sugar left. शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, शक्कर के दानों को, ओके। आपको केजीज में, है ना, ग्राम्स में परचेज करना होता है, दैट्स व्हाई देयर इज अ लिटिल शुगर लेफ्ट। डन। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज इजीली। बट आपको अगर क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर क्वेश्चन करना होगा कि कितना चावल बचा है, ठीक है, कितना चावल बचा है, तो आप हाउ मच से करेंगे कि हाउ मैनी से। तो जैसा मैंने बताया, चावल को, राइस को आप काउंट नहीं कर सकते, तो आपको क्वेश्चन किससे करना है, हाउ मच। सो हाउ मच राइस इज लेफ्ट, सो द आंसर विल बी देयर इज अ लिटिल राइस लेफ्ट, ओके। सो डन। So it's very interesting and it's very important exercise, okay, the previous one, this one. And ये जो है a little, a few, है ना, these are your determiners. So इनके हम ग्रामर में एक सेपरेट टॉपिक है डिटरमाइनर्स, जिसमें आपके आर्टिकल्स भी आते हैं ए एंड द, जिसके हम स्टडी करेंगे, ओके। वर्क इन पेयर्स, सो here use the words given in the box in exercise B1 and ask your partner. So जो वर्ड्स है, ये जो बॉक्स में जो वर्ड्स है ना, ये वाले राइस, पेन्स, ऑयल, बटर, बिस्किट, सॉल्ट, कैंडल्स एट्सेट्रा, सो आपको इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके अपने फ्रेंड से क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड हमारा क्या था, राइस। अब राइस से क्वेश्चन कैसे बना, क्वेश्चन कैसे करना है, आस्क, है ना, इज आस्क। क्वेश्चन कैसे करना है, कुड आई गेट सम राइस प्लीज। तो आपको, आप पूछ रहे हैं कि क्या मुझे कुछ राइस मिल सकता है। सो द आंसर विल बी यस प्लीज, सॉरी यू कांट। अगर आपको आंसर देना है यस में, तो यस प्लीज। एंड अगर आपका आंसर नो है कि आप नहीं ले सकते राइस, देन यू हैव टू रिप्लाई सॉरी यू कैन नॉट, ओके, यू कांट। रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन अनूस मॉम एंड रानी, ठीक है। तो ये तो सेकंड था, बट आपको फर्स्ट में ऐसे ही सारे जो वर्ड्स है बॉक्स में, ठीक है, राइस के बाद आपकी पेन्स थी, देन आफ्टर सॉल्ट, बटर, बिस्किट्स, तो ऐसे आपको सभी से क्वेश्चंस बनाने, क्वेश्चंस फॉर्म करने। फॉर एग्जांपल, कुड आई गेट सम पेन्स प्लीज, ठीक है, सम पेन्स और फ्यू पेन्स। कुड आई गेट सम शुगर प्लीज, क्या मुझे थोड़ी शुगर मिल सकती है। तो आपको एक ही रिप्लाई करना है, और आइदर यस प्लीज और सॉरी यू कांट। गेटिंग? सो इन दिस वे you have to ask questions and reply, and answer will be some or any, ठीक है। तो एक जगह आपका सम आएगा, सम कहाँ आएगा, सम, ओके, सम राइस, एंड
Could I get some pen? Is it possible? Some pen. Okay, so it's your homework. You have to reply some pen, some books, or any pen, any books. So you have to reply some आएगा कि any आएगा, because ये एक separate topic है. Determiner, some, any, few, little, a little, okay, a few, the few, है ना, a, n, the. तो इन सब के लिए ही एक वीडियो बनाया जाएगा, and you have to watch that video. It's necessary for you to understand this topic. Okay, so now the next is telephonic conversation between Anu's mom and Rani. अनु की मॉम एंड रानी का एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है. सो लेट्स स्टडी और लेट्स सी दिस कन्वर्सेशन. मॉम, हेलो. अनु, हेलो. कैन आई स्पीक टू रानी? मॉम, मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग टू? अनु, इट्स अनु. मॉम, ओ अनु, रानी हैज गॉन आउट. ओके आंटी, आई विल कॉल लेटर. गुड डे. मॉम, गुड डे अनु. अनु कॉल्स अगेन. सो आर यू गेटिंग? इट्स वेरी इजी. मॉम ने कहा हेलो, अनु ने भी कहा हेलो, और उसने पूछा कैन आई स्पीक टू रानी? क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ? मॉम, मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग टू? तो मॉम ने कहा क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ? अनु, इट्स अनु. वो कैसे बता रही है? इट्स अनु, इट इज़ अनु, है ना, ये अनु बोल रही है. मॉम, ओ अनु. अब वो उसे जानती थी. ओ अनु, रानी हैज़ गॉन आउट. रानी तो बाहर जा चुकी है. ओके आंटी, आई विल कॉल लेटर. गुड डे. अब अनु ने रिप्लाई किया ओके आंटी, मैं बाद में कॉल करूँगी. गुड डे. मॉम, गुड डे अनु. एंड अनु कॉल्स अगेन. अनु फिर से कॉल करती है. सो हियर यू हैव टू कंप्लीट द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन अनु एंड रानी एंड एक्ट इट आउट. आपको एक्ट भी करना है और कन्वर्सेशन क्या होगी अनु एंड रानू के बीच, क्योंकि अब तो रानी के बीच, क्योंकि उसने तो अभी दोबारा कॉल किया है. ओके. अनु, हेलो रानी, इट्स अनुराधा. सो रानी ने कहा हाय. सो यू कॉल्ड मी अर्लियर, मतलब तुमने पहले भी कॉल किया था? अनु, यस. मदर पिक्ड अप द कॉल मे बी, है ना. रानी कह रही है कि वेयर आर यू? मे बी इट मे बी वेयर आर यू? अनु, आई वॉज, या वेयर वर यू, तुम कहाँ थी? ठीक है, तो अनु भी कह सकती है कि आई वॉज इन द लाइब्रेरी, मैं कहाँ थी? लाइब्रेरी में थी. रानी, डिड यू ब्लैंक ऑन अवर प्रोजेक्ट? सो ये हो सकता है डिड यू वर्क, और डिड यू, है ना, प्रोसीड, और डिड यू सर्च ऑन अवर प्रोजेक्ट, है ना, कि तुमने मेरे प्रोजेक्ट पे, क्या हमारे प्रोजेक्ट पे वर्क किया? नेक्स्ट अनु रिप्लाई करेगी कि यस, है ना, आई गॉट समथिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी से कुछ मिला है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड. सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन. ओके, इट्स जस्ट एन एक्टिविटी, है ना, दैट हाउ टू कन्वर्स, ओके, इन इंग्लिश. नाउ द प्रोजेक्ट. ओके, these are not important, but let's finish the chapter first. Okay, the hare jumped into the fire. This was the right thing to do. Have a debate on this topic in your mother tongue. Very easy, कि आपको अपनी मदर टंग में हिंदी में ही बताना है कि रैबिट क्या था, हेयर फायर में जंप किया था, आग में, तो क्या ये एक्चुअल में सही चीज़ थी? तो आपको इस पर डिबेट करना है, वाद विवाद करना है. ठीक है, कि एक टीम आपके फेवर में होगी, एक अगेंस्ट में होगी, कि एक पक्ष में होगी, एक विपक्ष में होगी, और दोनों को डिबेट करना है कि आपका ओपिनियन क्या है, कि एक्चुअल में फायर में उसे क्या अपनी जान देनी थी या नहीं देनी थी. ओके. नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द टॉक बिटवीन द हर्मिट एंड द हेयर इनटू योर मदर टंग. तो मैंने तो ऑलरेडी पूरी ट्रांसलेशन कर दी है हिंदी में, जो आपको करनी है एक्चुअल में. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. तो इसका एक्सरसाइज थोड़ा लॉन्ग था, लेंदी था, तो वीडियो भी थोड़ा लेंदी हुआ है, बट आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.